हाय, मैं अक्षत कुमार, आप मेरे साथ देख रहे हैं फिल्मी मीडिया और ये वीडियो है प्रेस कॉन की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल क्रिएशन और क्रिएटिव स्किल कह लो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल की प्रेस कॉन की वीडियो है। इसमें दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या क्या है। गवर्नमेंट का कॉलेज है, ये गवर्नमेंट रिलेटेड है। बाकी क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, क्या बेनिफिट होंगे इसके, ये आप इस वीडियो में देखिए प्रेस कॉन में। इसके इस क्लिप के जस्ट नेक्स्ट ही है। I'm Mohit Soni. I'm the Chief Executive Officer for Media and Entertainment Skills Council. We operate under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. And this initiative, Indian Institute of Creative Skills, which you see, is affiliated with NSDC Academy. And this has been funded by National Skill Development Corporation. So the objective was to see that we could create an institution in the country which can bring global standards and possibly give as a platform to the aspirants to become entrepreneurs and create some original content which we can showcase the world. The objective would be very simple, to create 10 of these facilities in India and see that we are able to nurture the regional markets, develop the regional content and show it to the global market. So as we know that India is the largest population with the most advanced smartphone camera devices. I think it's a wonderful opportunity for all the digital creators to not just shoot but also edit it, package it and present it in the way that can not just create some kind of an impact in the society but also give them some kind of monetization. So Indian Institute of Creative Skills is a platform, it's a launch pad, and we, through this workshop today, where we have got so many beautiful people coming in and all these content creators coming in, are opening our doors for the youth to come in and be a part of this training facility. We will have the best of the best come in and train here. There are 5 departments we are working with. There is a School of Sound and Music run by Dr. Rasul Pukuti. We have a School of Creative and Performing Arts run by Mr. Amit Bahal and Ms. Yasmin Rogers. Then there is School of Event Management, which is run by Viscraft Mai. We have School of Digital Media and Communication, where Ketki ma'am is our chief mentor. And then we have School of New Age Media, where we have Lakshya as one of the biggest gaming companies in the country we have today, and Niley Games. Apart from that, we also have a PR and communication which is headed by Anusha. So these are various departments under which the mentors are there, but apart from the mentors, you see a workforce of 1,000 people supporting from the industry to come in and shine it out. And we will create a platform where these kids will not just get trained, but they will also get internship opportunities. And before they graduate, it's our commitment that we will give them a base to go out and shine in the market. And even if they want to get into the wage-based employment, they would not go on the bottom of the pyramid, but two layers above the bottom of the pyramid. So that's the objective, and that's why we are here today. Thank you. Good one. I think you have said it all. Yeah, actually. नहीं, ऐसा अगर आप सवाल भी करोगे तो मैं कहूँगा वो वाला जवाब पिक कर लेना। नहीं, आप कुछ आप हट के दे दीजिएगा। आप हमारा अपना नाम सर बता के अपना व्हाट्सएप। हाय, मेरा नाम है करम उदय जंजारी। मेरे करियर की शुरुआत एक डांसर से हुई थी एंड मैं पॉप सिंगर्स अलीशा चुना, श्वेता शेट्टी के लिए डांस करता था। फिर मैं मॉडल बना, फिर मैं एक्टर बना। मेरी पहली फिल्म थी ओप्स, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिल्म थी, और उसके बाद तुरंत मैंने माय फ्रेंड गणेशा भी की, जो उस कंट्रोवर्सी को मिटाने के लिए तो गणपति का भक्त बन गया था उसमें। सो वो फिल्म काफ़ी अच्छी थी एंड काफ़ी जितने भी आर्ट फिल्म हैं बॉम्बे में, अब हम शिफ्ट हो गए लंदन एंड हम लंदन में भी प्रोडक्शन करते हैं। सोनी यूके के साथ काफ़ी हम प्लानिंग कर रहे हैं शोज़ करने के लिए, और हमारा बिजनेस भी है लंदन में। तो ये है कि सब पूछते हैं कि इंडिया में आप एक्टिंग छोड़ के 10-15 फिल्में करने के बाद आप लंदन शिफ्ट हो गए, तो हमारे लिए ये है कि इंडस्ट्री जहाँ जहाँ है, आजकल लंदन में भी आपने देखा काफ़ी फिल्में शूट होती हैं, सो हम वहाँ भी करते हैं एक्ट फिल्म्स और यहाँ भी मॉडलिंग करते हैं, तो लाइफ दोनों जगह बैलेंस होती है। सर, एक सवाल था, एज अ एक्टर जब आपका टाइम था तो उस समय एक्टिंग और उसमें काम करना, लोगों से बात करना बहुत डिफरेंट होता था। आज के टाइम पे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स या फिर अलग अलग लोग हमें डिजिटली मिल जाते हैं। तो आज के टाइम पे जो लोग करना चाहते हैं एक्टिंग में या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को शोकेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जो पहले नहीं थे लेकिन अब? आप कह रहे हैं कि डिजिटल जो ये प्लेटफॉर्म है उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं? बेसिकली जैसे कि कुछ काफ़ी ज़्यादा फेक चीज़ें और स्कैम्स भी हमको इसमें मिलते हैं, तो किसी पे भी ट्रस्ट करना बहुत ईजी नहीं होता है।
लेकिन जब हम लोग पहले के ज़माने में था कि हम लोग लोगों से जाके खुद बात करते थे, तो उधर वर्ड टू वर्ड का जो ट्रस्ट था वो अलग था। लेकिन इन स्कैम से बचना आज के जनरेशन के लिए थोड़ा मुश्किल है, तो उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? काफ़ी डिफिकल्ट सवाल है वैसे। आई फील एक स्मार्ट होना ही इम्पोर्टेंट है। देखो स्कैम तो पहले भी होते थे, हमारे टाइम पे भी कास्टिंग में स्कैम होते थे, हमसे भी पैसे वसूले जाते थे, हमें भी झूठ बोला जाता था, उस टाइम भी कास्टिंग काउच था, तो आज भी हुई है। इट्स बेसिकली स्मार्टफोन्स इन सब में डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ने से लोग और स्मार्ट हो गए, फिर भी आप देखो कि स्कैमस्टर ज़्यादा स्मार्ट हो गए। सो इन अ वे ये बैलेंस तो हमेशा रहेगा, जहाँ अच्छाई है बुराई भी होगी। It would be nice if we can just, keep it to the education base. That would be the great for, because here you want to spread a message on the education, and they are also connected with the London School and all of that. So that Yes. we're looking at an opportunity here in India, that how we can get this institute there, and we can have a more of a student exchange program and stuff like that. You can ask him. So What's your name? my name is Ketki Pandit. I'm a film producer. I think her turn will come. Abhi to हाँ, on ये behalf तो of नहीं him, she has answered. Yeah. Yeah. So now what's your name? What would you? My name is Ritu Janjani and I have been in makeup since 15 years. मैंने पहले लॉस एंजलिस से मैंने पढ़ाई की थी अपनी, उसके बाद से मैं फिल्म और टेलीविज़न पे मेकअप करती भी हूँ और सिखाती भी हूँ। दैट्स माय फोटे। अभी इट्स बीन 5 years कि हम लंदन में हैं and I'm a makeup educationist in London, hence we are here supporting. I think it's a great effort by Indian government and all the lovely people who are associated with it, जो उसको आगे ले जा रहे हैं। Because मैंने अपनी 15-16 साल की जर्नी में ये देखा है कि दिस वॉज अ वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्रिएटिव पीपल आर देयर, लेकिन उसमें क्या था कि सीखे हुए, लाइक व्हेन आई केम टू इंडिया, मुझे ये पता चला कि वुमेन मेकअप आर्टिस्ट को तो काम ही नहीं है इंडस्ट्री में, एंड दैट वाज अ फाइट एंड देन खाली मेल मेकअप आर्टिस्ट होते थे और लड़कियां हेयर ड्रेसेस होती थी। आई हैव सीन दैट थिंग चेंजिंग एंड with this education, which is a co-ed education, and we talk so much about women empowerment now. I think with and this Indian Institute of Creative Arts, and I feel कि ये बहुत ये सेक्टर को बहुत ऑर्गेनाइज करेगा। There are so many, they are doing गेमिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं। आज टुडे यू डोंट नीड अ डायरेक्टर टू डायरेक्ट यू। सो आई फील ये जो यहाँ से बच्चे, छोटे बच्चे या जो 16 to 19 ईयर्स के जो बच्चे जो उनके फाउंडेशन ईयर्स में सीख के जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि उनको सिर्फ एक्टर ही बनना है या उनको मीडिया लाइन में ही जाना है। टुडे इवन इफ यू आर अ डॉक्टर, यू नीड टू मार्केट योरसेल्फ, and with this technology and with this how to speak in front of the camera, how to look presentable, that can be a gift for you for whatever you do. You don't have to be an actor. We're not saying कि आप हमारा कोर्स करो and you gonna become great actors and great this. वो तो 4-5 गिने चुने लोग बनते हैं, किस्मत होती है तो people. But now we are saying we have more opportunities in India. We don't always have to just go for doctor, engineer, actor, singer. There are many things. So I think with this initiative, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सारी चीज़ों को गैदर करने की, सीखने की, and they have plans to go international with it. I think India, तो everyone is looking at India today for growth, and we are great in number. So I think we will really make a difference with this education sector. जी मामा। पहले वाला कट कर देना। और ये वाला डालना, ये वाला डालना। मैंने तो बोला वो डालना। नहीं, पर पहली बार सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए, एंड यू आर ऑल्सो हेल्पिंग अस टू टेक दिस मैसेज फॉरवर्ड। मेरा नाम केतकी पंडित है, मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। अगर बहुत ही रिसेंटली बात करूँ तो आई हैड अ कंपनी कॉल टीम ऑफ प्रोडक्शन HQ। मेरे पार्टनर अभी नहीं है या आएंगे अभी थोड़े टाइम से। वी वन एट कांस फिल्म फेस्टिवल द फिल्म शेमलेस फॉर इंडिया। वी आर इंडिया प्रोड्यूसर्स, एंड ऑल्सो अभी हमारी जो रिसेंटली फिल्म आई है बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी ऑन जियो हॉटस्टार, that also very launched Shekhar Theatre. So mainly we are into producing the films. Apart from that, I have a platform called Youth, which is connected to around 600 universities pan India. We empower students. We basically create that path where industry can meet the student, and we can create the right ecosystem. Again, we can organize this whole sector, and this is why my contribution to Mohit's vision, Indian Institute of Creative Skills, where we can organize the sector well.
you'll see influencers here. She has a platform. She's a renowned actor. Has done a lot of shows and all of that. Akhil is here. He's been doing. आप तो सब उसको जानते ही हो. He's been doing a lot of work. They have come all the way from London to support us. तो हमारे लिए तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि हमारा जो मैसेज है, मोहित जी का मैसेज है, MESC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, जो सब मिलके एक कोशिश कर रहे हैं कि हम ये सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकें, इससे ज़्यादा एजुकेशन हम बाहर कर सकें, हम ज़्यादा स्किल लोगों को तैयार कर सकें, उससे अच्छा क्या होगा। एज वगैरह क्या रहेगी उसमें? क्या? एज क्या रहेगी इसमें? एज 12+ कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है। आई थिंक मोहित जी विल बी राइट टू So ideally, 16 years plus any student can come in for the program when it is a degree program. पर अगर हम लोग अपस्किलिंग प्रोग्राम्स की बात करेंगे, हैंड वर्कशॉप्स की बात करेंगे, तो दैट इज टारगेटेड मोर टुवर्ड्स वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड पीपल हु आर ऑलरेडी इन द इंडस्ट्री। तो लिमिटेशन एज में कोई बार नहीं है यहाँ पे। अगर हम लोग एक्सटेंडेड क्लासेस की बात करेंगे, वीकेंड क्लासेस की बात करेंगे, तो दैट इज कस्टमाइज्ड फॉर प्रोफेशनल्स एंड दे आर ओनली फोकसिंग ऑन अपस्किलिंग। बट रेगुलर कोर्सेज के अंदर 16 साल से ऊपर कोई भी बच्चा आ सकता है। मतलब एज इन 12th स्टैंडर्ड क्लास Yes. व्हिच वी कैन टेक इट, दे कैन टेक एडमिशंस। तो क्या इंडोर ही होगा या फिर आउट भी कहीं आप मतलब? तो हमारे इधर एक तो ट्रेनिंग डेफिनेटली यहाँ पे पहले क्लासेस में चलेगी, बट हाँ सबसे ज़्यादा USP यहाँ की ये है कि हम बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स करेंगे जहाँ पे बच्चों को ऑन फील्ड एजुकेशन मिलेगी। तो इसमें बेस्ट प्रोग्राम में जो USP है वो ये है कि बच्चों को 6 महीने का लाइव प्रोजेक्ट मिलेगा, जहाँ पे वो लोग लिटरली एक इंडस्ट्री प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और जब वो यहाँ से निकलेंगे तो उनके पास अपने पोर्टफोलियो प्रेजेंट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिश्ड प्रोडक्ट होगी। और उसके अलावा 6 महीने का उन लोगों का अप्रेंटिसशिप है, जिसमें मिनिमम उनको 35,000 से 50,000 रुपये के स्टाइपेंड हम लोग कमिट करते हैं। तो जो बच्चा यहाँ से इंडस्ट्री में जाएगा वेज बेस में, हमारा ये मानना है कि मिनिमम उसको 65-70 हज़ार रुपये का स्टार्टिंग सैलरी मिलना चाहिए, अनटिल लेस वो खुद ही एंटरप्रेन्योर बन के बाहर जाके मार्केट के अंदर अपना कुछ एस्टेब्लिश करे। तो इसमें कुछ चार्जेस भी आपके, कोई नॉमिनल या कुछ फीस? तो इसमें हम लोगों ने फीस जो है बहुत ही नॉमिनल रखी है। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो 6 लाख रुपए साल का हम लोगों ने यहाँ पे फीस रखा हुआ है। और दिल्ली कैंपस के अलावा हम लोग चंडीगढ़ में एक कैंपस डाल रहे हैं, अहमदाबाद में हम डाल रहे हैं, भोपाल में एक कैंपस होगा हमारे पास में, एक बॉम्बे में, एक बेंगलोर, एक चेन्नई। तो ऐसे 10 कैंपसेस इंडिया में होंगे और 5 कैंपसेस अब्रॉड हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तो इसमें क्या आपका मतलब खास रहने वाला? क्योंकि अभी देखिए, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल अपने आप में एक अवार्डिंग बॉडी है, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस आप कंट्री में देख रहे हैं वो सब हमारे साथ एफिलिएटेड हैं। आइडिया इसको एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का बिल्कुल भी नहीं है, ये एक लॉन्च पैड है जैसा मैंने आप लोगों को बताया, और इसका मकसद ही यही है कि हम लोग कैंडिडेट्स को यहाँ पे ट्रेन करने के बाद में मार्केट में एंटरप्रेन्योरशिप, IP क्रिएशन और एक बहुत ही सीजन प्रोफेशनल के तरीके से आउटलुक में प्रेजेंट कर सकें। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में ज़्यादातर आप ये देखेंगे कि बच्चे को मार्केट में जाने के बाद में इंडस्ट्री के अंदर में 6 महीना 1 साल लगाना पड़ता है जब वो आउटकम बेस्ड अप्रोच में आ पाता है। यहाँ वो गैप जो है, जो 6 महीना 1 साल बच्चा सीखेगा इंडस्ट्री में जाने पे, वो गैप को हम लोग कम से कम 1 महीना 1.5 महीना या हो सकता है 0 मंथ्स करने की पूरी कोशिश करेंगे। Hi, I'm Dr. Uma Bhardwaj, Vice Chancellor of Noida International University. See, what is important, education. It is still going on a very crude system that you have to have medical, engineering, management, law. But this is the time that we really need to think out of the box. I'm particularly here to bridge the education industry with any other industry in the country, either it is a film industry, media industry, or anything. And the university can provide a right kind of platform to nurture such talent to the country. When we talk about the creativity, ISCS, Indian Institute of Creative Skills, you know what is happening in the crude system right from the childhood, when the child goes to the school, till to the higher education, the tertiary education when we talk about, the creativity is dying. And we are definitely, because it's a classroom conditioning. The child right from the classroom, and you must be having a children at home, do your homework, complete your homework. If the child wants to, draw something or wants to do something beyond that, the parents try to curb that creativity. So this is, I am so thankful to the Ministry of Skill and Entrepreneurship that now we are creating room for the creativity, and how we can give future to the generations by giving the room for that creativity and making that creativity the empowered one.
Because ultimately what you want from the education, that skilling is very, very important. Why the education is now going behind? The reason being that the skilling part is completely missing. Why I'm here? I want to connect that with them so that we need to go for the skilling of the students. Once you do the skilling of the students, what students want out of any degree or education or any certification? They should be either employable, or they can be the entrepreneur, or across the globe, wherever they want to go for the higher education, they need to have the entry. So for that, we want to bridge up that gap and bring and nurture those creative people here to this, and they have a launch pad where we can take it forward through higher educations, run these programs in the university so that we can nurture the talent for the future. And as per the NEP 2020, this lot of flexibility has now come in our hand. Basically, previously we are now going for the West education system. NEP 2020 is all about that we are now copying the education system of US, UK and all that. Otherwise, the boundaries were so tight, our hands were tight in higher education that we can do this, we cannot do that. But under the NEP 2020, we talk about that we need to have the skill enhancement courses, ability enhancement courses. This is how we need to go. That's the future. This is the time now we need to move out of that crude system of education and get into the skilling of the student. It's a skill India. Modi ji always say, the Honorable Prime Minister, skill India, digital India. I truly tell you, I have traveled more than 30 countries in the world. I have been to all top universities of the world, and I have seen the education scenario there and in our country. What is important? Actually, India is a digital India. Today, if I order something on Blinkit, it comes in 8 minutes time. We sometimes wonder how it is happening. That's again a skilling, I tell you. So, these things are very, very important, which can empower people. So our purpose is to empower the people, nurture the creativity of the youth of the country. So this is why I am here to do that. Thank you very much. मैम मेरा एक सवाल है कि काफ़ी सारे क्रिएटर्स या बोल लिए जो फ्रेश माइंडसेट हैं, उनका ये थॉट प्रोसेस होता है कि हमारे पास टैलेंट है, उनको पता ही नहीं है कि क्या टैलेंट है, वो फाइंड आउट ही नहीं कर पाते. तो आपका ऐसा कोई प्रोसेस है जिससे आप यंग जनरेशन जो है उनको बता सकें? Definitely what we do, we have a career counseling cell in the university. Sometimes what happens when the student, we have also created one program where we have a connect with the secondary education. Before the student moves into the tertiary education means to higher education. So like my team goes to the different schools and try to nurture the students. What do you want? What career do you need? So now there are so many psychometric tests out there through which we can understand. Because students are, after 12th, they do not know what to do. Some of the students, they know right from the childhood, like my daughter. She knew it, I want to be a film actress. Right from the childhood. She said, no, I'm studying, I am gifting this BTech degree to you because my parents are highly educated. Both of them are the vice chancellors and all educated people are there in the family. She said, I said, beta, now I'm sending you to MIT, UK, US. You go and study there. She said, no, it's enough. I've done my BTech degree, that is from the NIT Surat. She said, I'm gifting this degree to you. Let me live my passion now. We supported her through and through because something which passionates you, I tell you, the success automatically comes. Something which we try and enforce. I see in my university, something which is imposed upon on the students. The results are not very good. Something they are passionate about, they're coming out of it. So we have the different segments of courses. When I have just said skill enhancement courses, ability enhancement courses, like my MBBS student, I'm putting them to study the music also, dance, drama, whatever they are interested in, so that if they have a creativity for this, definitely they will understand on their own. There are different tests for it, which we do for the student, so they will come out. The crystal clear things come into their mind, which career I want to go for, what is my future. So the technology has improved a lot now. So students are no more confused. They know what they want to do. I think after the question about valid, I'll just answer that in 1 minute. Under Media and Entertainment Skills Council, हम लोगों ने एक मीडिया एंटरटेनमेंट क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट
2022 में चालू किया था। उसका कोर ऑब्जेक्टिव यही था कि आज बच्चा जो है, क्योंकि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर एक बहुत एस्पिरेशनल सेक्टर है और बच्चे को ज़्यादातर ये पता नहीं होता कि उसका रुझान और उसकी काबिलियत किस चीज़ में। तो ज़्यादातर हम लोगों ने देखा कि एक बच्चे को ने गेम खेला तो उसको लगता है मुझे गेम डेवलपर बनना है, उसने फिल्म देखी तो वो बोलता है मुझे एक्टर बनना है। तो आइडियली उसको पता नहीं होता कि उसकी इनर सेल्फ में उसकी पर्सनैलिटी की या उसके एप्टीट्यूड के बेसिस पे कौन सा कैरियर उसको चूज करना है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने वर्ल्ड के टॉप साइकोमेट्रिक एक्सपर्ट्स के साथ मिल करके मीडिया एंटरटेनमेंट क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट बनाया। ये नेशनल AVGC पॉलिसी का पार्ट भी है और इस मीकैट के अंदर एक स्टूडेंट जब अपीयर करता है तो हमें ना सिर्फ उसके एप्टीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स के बारे में पता लगता है, बल्कि वो टेस्ट उसको एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैट्रिक्स दे देता है कि वो अगर फिल्म मेकिंग में जाता है तो उसके सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, अगर वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जाता है तो उसके चांसेस कितने हैं। और ये इस इंस्टीट्यूशन के अंदर या आज की तारीख में जो भी अच्छे रिनोन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, मीकेट वहाँ पे एक एंट्रेंस क्राइटेरिया है। इवन यहाँ पे भी जो हम लोग 210 बच्चों का सिलेक्शन करेंगे उसका पहला लेयर जो होगा वो मीकेट के थ्रू ही आएगा। तो We ऐसे have भी the टेस्ट first psychometric test we do for the students. Then only they decide the career. That is the part of the entrance. But I feel that when you have a setup like this, when you have various things under one roof, then you know, even if you, ऐसा कितनी बार हमने सुना है कि ये इंजीनियर है लेकिन अब वो एक्टर बन गए हैं, या you know, there is a change shift of mind, फिल्म मेकर बन गए हैं, एडिटर थे अभी डायरेक्टर बन गए हैं, you know, and you know, producers, there are so many things. Yes. So basically you always change, and the creative mind, as the name suggests, they don't restrict yourself in a box. Think out of the box, try everything. I think they have we were talking about exchange program, we're talking Yes. about this, whether it's intercity for now, India is huge, or international. I think that will make them, and change your mind. Why not? Yeah. Change your mind at 50. Global. So here also all the courses and everything is at industry standard. Apart from that, there are a lot of opportunity which is national and global for them. Right, so right there they will go to do some assignment in London or maybe on the film set or recording into some international studio. We have all the leading production houses partnering with us. That's something where it's very easy access for those students to go and pitch their ideas or to be a part of any segment which they want to learn and they want to learn. So yeah, that is a great opportunity which IICS, Indian Institute of Creative Skills, provides. What's your name and हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम राधा भट्ट है और मैं एक एक्टर हूँ और साथ में कोच भी हूँ। आई थिंक आप लोगों ने सब कुछ कह दिया है। फिक्स तो एक्सपीरियंस ही बता दीजिएगा अपना कोई। सो ओके, अगर आपने मुझे देखा होगा तो सनफ्लावर ऑन ZEE5 में देखा होगा, फिजिक्स वाला ऑन Amazon, ZTV, सोनी, जी जिंदगी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में देखा होगा, एड फिल्म्स में देखा होगा। एंड आई फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट ये जर्नी रही मेरी इतने समय की। और आफ्टर लिसनिंग टू ऑल ऑफ यू, जो ब्यूटी मुझे लगा कि पूरे एंटायर कॉन्वर्सेशन की वो है कि दैट यू विल हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी, सो हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी। सो देयर इज अ जर्नी। सो पहले एक्टर को बनने के लिए बहुत घूमना पड़ता था, यू हैव टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। वो कभी 10 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है। वी हैव स्टोरीज इन इंडस्ट्री के लोगों को सालों लग गए कहीं पहुंचने के लिए। आई थिंक थ्रू दिस प्लेटफॉर्म IICS you will save a lot of time of yours. You will have clarity who you want to be and how to get there. And जैसे सर ने कहा कि जो इंडस्ट्री में सीखने के बाद का जो टाइम होता है 1-1.5 साल, वो बहुत क्रूशियल होता है, because that makes your breaks you ना, because वो कॉन्फिडेंस टूटता है, उम्मीदें बनती हैं, होप्स होती है ना, आप बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हो। सो अगर वो टाइम हम बचा रहे हैं और हम एक मिनिमम अमाउंट जो हम कह रहे हैं कि द काइंड ऑफ मनी सपोर्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द फाइनेंशियल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कंसिडरिंग जो इंडस्ट्री है बहुत अनरेगुलेटेड है, पैसे का नहीं पता, लोगों का नहीं पता, someone talked about scams, there is so much and having a platform which talks about all of this, जो सारे behind the scenes के issues हैं, हम सिर्फ देखते हैं कि फिल्म बन गई है, एक्टर्स दिख गए, पर उसके पीछे की जो स्टोरी है उसके अगर कोई हैंड होल्डिंग करने के लिए है, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल वे ऑफ डूइंग इट। एंड यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दोज इश्यूज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई थिंक इट्स commendable and I'm really happy that finally इंडस्ट्री में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे genuinely that we want to walk the path with them now.
So that's commendable. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने कोई हार्डशिप फेस करी या आप कैसे थोड़ा अपना बहुत डिफिकल्ट रहा यस मतलब उस टाइम पे जब सर ने कहा कि 10 साल पहले डिजिटल नहीं था, सोशल मीडिया इतना नहीं था, आपको खुद ही गूगल करके आप एड्रेस ढूंढते थे और जाके लोगों से मिलते थे, अपना पोर्टफोलियो दिखाते थे, ऑडिशन करते थे। आई थिंक दैट वाज द प्रोसेस। और आज तो आपके हाथों में फोन्स हैं, यू हैव द स्क्रीन विद यू। सो ये इजी भी हुआ है और मुश्किल भी हुआ है, दोनों चीज़ें हुई हैं। और आई थिंक दैट इज़ वेयर IICS कम्स, जहाँ पे वो रेगुलेट करता है पूरी प्रोसेस को एंड मेक्स इट मोर कन्वीनियंट, क्लियर फॉर एवरीवन आउट देयर। अपने एक्सपीरियंस का कोई टिप्स देना चाहिए उनको? मेरे एक्सपीरियंस का टिप आई थिंक मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप ऊपर काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ वन थिंग एज एन एक्टर दैट एट दिस एज ऑल्सो ऑलमोस्ट अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस, बट आज भी मैं वर्कशॉप्स के लिए जाती हूँ, अपने पे काम करती हूँ। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो वो एक चीज़ मुझे लगता है करते रहना चाहिए। जैसे हमने अपस्केलिंग की बात की, इवन इफ यू आर एन एक्टर। ये जो कंसिस्टेंसी की बात इन्होंने की है ना, वो सीरियसली एक बात बताऊं, लोगों के सपने टूट जाते हैं, आधे रास्ते रुक जाते हैं। अगर ये स्टाइपेंड नहीं मिलेगी तो बंदा आधे में जर्नी छोड़ देता है। और अगर वो डांसर बनना चाहता है तो अगर उसको पैसे नहीं होते, स्ट्रगल में वो टूट जाता है, तो सोचता मैं जाके एक मैकडॉनल्ड्स में जॉब कर लेता हूँ, या उसके सपने चूर चूर जाता है। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग पॉइंट इनका मुझे यही बेस्ट लगा कि ये स्टाइपेंड दे रहे हैं, बंदा वो डटा रहेगा कि मेरे को ये जर्नी खत्म करनी है और मेरा सपना पूरा ऑफ होगा। एक्सप्लॉयटेशन लाइक दैट जो That सीख will के also- आते yeah, हैं वो भी कम हो जाएगा ना, वो भी because कम हो they जाएगा। will do हाँ, out of your choices. हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। तो हेलो, मेरा नाम अखिल कुमार है और मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं अब एक प्रोड्यूसर भी हूँ। मैंने एक फिल्म अभी रिसेंटली प्रोड्यूस की है और कई टेलीविज़न नेटवर्क्स पे मैं काम कर चुका हूँ, जैसे कि MTV, NDTV, जी, जियो सिनेमा पे भी, जियो का जो ऐप है उस पर भी मेरा एक प्रोजेक्ट है अभी। तो क्योंकि ये IIC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स है, क्योंकि IICS नहीं बोलता हूँ तो मेरे को डांट पड़ जाती है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स जो खुला है, एक्चुअली मेरी एक स्टोरी मुझे भी इतना मैंने सुना याद आई। तो मैं स्पेन गया था एक एक्सचेंज प्रोग्राम पे, और वहाँ पे ना ऐसा ही एक क्रिएटिव इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए गया था। और मैंने उस टाइम पे एक्चुअली सोचा था, आई थिंक ये 2017-18 की बात है, कि इंडिया में ऐसा कुछ क्यों नहीं है। वी आर नॉट लैकिंग बिहाइंड, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ट्रेनर्स हैं, हमारे पास टैलेंट है। तो अब क्योंकि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स खुल गया है, तो जिन लोगों ने मुझसे पूछा था स्पेन में, तो मैं उनको ज़रूर बताऊंगा कि हमारे इंडिया में IIT भी है, IIM भी है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स भी है। और थैंक्स टू मोहित सर, जो इन्होंने भी ये स्टाइपेंड वाली बात बोली। आई कम्प्लीटली अग्री विद यू कि एक्टर्स टूट जाते हैं लिटरली जब उनको काम नहीं मिलता है। आई हैव रियली सीन दैट माई सेल्फ। और काश उस टाइम पे आपका इंस्टीट्यूट होता तो मैं ज़रूर इनरोल करता, बट क्योंकि अब है तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस इंस्टीट्यूट। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का भी वी आर वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म खोला है। एंड इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है बहुत सारे क्रिएटर्स को अब एक्टर्स बनने का मन कर रहा है। हम देख ही रहे हैं, सबके शोज आ रहे हैं। तो केटकी मैम ने एक्चुअली एक सोशल मीडिया का कोर्स इसमें इंटीग्रेट किया है, जिसमें एक्टर्स का, एक्टिंग का तो हमारे पास कोर्स है ही, बट ये जो सोशल मीडिया का, ये मेरा फेवरेट कोर्स है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आई डोंट थिंक क्रिएटर्स के लिए इस लेवल का कोई भी कोर्स इंडिया में एग्जिस्ट करता है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड थैंक यू मैम फॉर मेकिंग अ कोर्स लाइक दैट फॉर क्रिएटर्स लाइक अस। और अगर आप और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। Most of you already know me because these are all my media friends. Just out here. So hi everyone. I am Sonakshi Kalrega. फिर से बता देती हूँ. I started my journey as an actor और ये बात अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और जो स्कैम्स की बात आप लोग कर रहे थे, मैं सबसे ज़्यादा रिलेट यहाँ पर कर पा रही थी because I take celebrity interviews today, a lot of celebrity interviews back to back. और ये वाली कॉन्वर्सेशन मेरी राजकुमार राव से भी एक बार हुई थी और ऑफ द कैमरा हुई थी, और उन्होंने मुझे यही बोला था कि उनसे किसी ने 8,000 रुपये ले लिए थे, ये कहकर कि वो एक बढ़िया मूवी में आपको रोल दिलाएंगे। एंड राजकुमार राव इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, वी ऑल नो। तो उनके कई सारे ऐसे किस्से हुए थे, मैंने भी उनसे शेयर किया था। जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे को एक बहुत ही शेडी सी लोकेशन में बुलाया गया था और फेसबुक पर ही मैंने उनका पोस्ट देखा था, मैं चली गई। बिकॉज आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए होता है, हमारा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, हमें जो पोस्ट दिखता है हमें लगता है सच ही होगा यार,
लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन मैं बच गई बिकॉज मेरे फ्रेंड ने मेरे को थोड़ी सी सेंस दे दी कि मुझे कुछ बहुत खराब लग रहा है, यहाँ से निकल। मैंने कहा, मैं जिद में थी कि मैं आई हूँ, मैं ऑडिशन दे के जाऊंगी, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत शेडी सी फीलिंग आ रही है बिकॉज बहुत खराब सी बिल्डिंग थी, लोग आपको घूर रहे हैं, कुछ भी प्रोफेशनल नहीं लग रहा था। आई स्टिल गेव माय ऑडिशन एंड जब मैं नीचे उतरी तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि आज के बाद बहुत देख कर जाना है जहाँ भी जाना है। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये सालों पहले की बात है, तब हमें इश्यूज होते थे ऐसे बिकॉज हमें पता नहीं चलता था ऑथेंटिक क्या है क्या नहीं है। फर्स्टली IICS की जो अच्छी चीज़ है वो सबसे पहली चीज़ है ऑथेंटिसिटी, बिकॉज इट्स गवर्नमेंट बैक्ड, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट वहीं पर बन जाता है। दूसरी चीज, स्टाइपेंड बहुत बड़ा मुझे लगता है मोटिवेशन है, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड अ डिसेंट लाइफस्टाइल टुडे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सबको लगता है कि हमारी स्किल्स जा रही है, सब जा रही है, वो सब ठीक है, लेकिन पैसा कहाँ से आ रहा है? तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टाइपेंड भी आपको मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि आपको, हम कहते हैं ना, एक ब्रेक नहीं मिलता, हम लोग फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, वो ब्रेक आपको यहाँ पर रियल प्रोजेक्ट्स के थ्रू मिल रहा है। आई डोंट थिंक इससे बढ़िया कोई बात है। जो चीजें हम लोगों ने फेस की है हमारे टाइम में, जिन चीजों से हम लोग निकले हैं, तो हमें पता है रियल स्ट्रगल क्या होता है जब आप बेस पर काम कर रहे होते हो और आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता, किस पर ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना। देन कास्टिंग काउच के केसेस हम बहुत सुनते हैं, बहुत सारे लोग, मतलब राधा आई थिंक ज्यादा बेटर तरह से रिलेट भी कर पाएंगी कि इस तरह के हमारे पास बहुत से मैसेजेस आते थे, मेरे पास उस टाइम भी आते, मुझे अभी भी याद है कि आपको पॉइंट्स का ऐड करना है और डिफरेंट सिटीज में आपके होर्डिंग्स लगेंगे, बट आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं इतनी सिली थी दैट आई डिडंट नो द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज देन। मैंने कहा उसका मतलब क्या कह रहे हैं, आप लड़कियों, आपको समझना चाहिए। And you know that's so Yeah, they expect us to believe everything and they expect us to know all these terms. जबकि हम नए उस टाइम ग्रेजुएट हुए थे, ग्रेजुएशन मेरी हुई भी नहीं थी, मैं आई थिंक सेकेंड ईयर में थी। तो वो सब चीजें जो हमने उस टाइम फेस की है ना, आई थिंक हम सबको इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ आपको बताओ कि पहली चीज गवर्नमेंट बैक्ड है, तो वो चीज है कि यार यहाँ पर हमारा मिसयूज नहीं होगा। अगर हम जेन्युइनली कुछ सीखना चाहते हैं, किसी चीज को लेके पैशनेट है, तो हम अच्छे से अगर सीखने आए हैं, अच्छी जगह पे आए हैं, देन अगेन राइट मेंटर्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमें वहां से वो इंडस्ट्री के बहुत सारे इनसाइट्स भी देखने को मिलेंगे और पता चलेंगे कि यार रियल इंडस्ट्री में क्या होता है, सिर्फ बुक्स की नॉलेज नहीं होगी। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जहाँ पर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को एनरोल करना चाहिए। दे आर एक्चुअली पैशनेट about doing something, if they are actually passionate about entering the industry किसी भी एस्पेक्ट में, फिर चाहे वो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे गेमिंग के उसमें हो, VFX हो, SFX हो, हम लोग जिस फील्ड में हैं, आज मैं एक क्रिएटर हूँ और इंटरव्यूज देती हूँ, साथ साथ कंटेंट क्रिएट करती हूँ, स्क्रिप्टिंग करती हूँ, सब करती हूँ। एंड जितने भी यहाँ पे मीडिया फ्रेंड्स हैं उन सबको पता है कि जिस तरह की जॉब में हम लोग हैं, हमें सारी स्किल्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्टर नहीं हो सकते बट कुछ तो सीख ही सकते हैं ना, और वो हमें पता है कितना काम आता है जब आप किसी ना किसी सिचुएशन में फंस जाते हो ना, टेक्निकल एरर हो गया, इसकी तबीयत खराब हो गई, उसका ये हो गया, उसके घर से कॉल आ गया, कुछ इशू हो गया, इसका एक्सीडेंट हो गया, तो आपको पता है कि यही स्किल्स काम आती है। सो आई थिंक अगर आप किसी चीज को लेके पैशनेट हो तो जस्ट डाइव इनटू इट। इस तरह के कोर्सेज में प्लीज एनरोल करिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपका जो आपकी स्किल्स ही बढ़ेंगी एंड आप मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेडी हो जाओगे इंडस्ट्री को अच्छी तरह से फेस करने के लिए एंड देन अल्टीमेटली कुछ अचीव करने के लिए। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट आई ऑब्जर्व। एक सवाल है मेरा, आपका कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? जैसे 1 साल का तो आपने बताया कि 6 लाख फीस, तो जैसे सर्टिफिकेट कोर्स दे रहे हैं, डिप्लोमा दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, अगर डिग्री तो आप देंगे इसलिए कि कहीं से अपडेटेड नहीं है आप तो पार डिप्लोमा देंगे या पीजी डिप्लोमा तो देंगे? मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। हाँ, पहली चीज तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स का आज हमारा एक फॉर्मल लॉन्च नहीं है। फॉर्मल लॉन्च इसका मंत्री जी के करकमलों से ही होगा, उसमें हम लोगों के सेक्रेटरी भी होंगे, हमारे NSDC के CEO वेदमणि जी भी होंगे और इंडस्ट्री के सारे दिग्गज भी होंगे। तो फॉर्मल लॉन्च हम लोग जब करेंगे तब हम आप लोगों को दोबारा बुलाएंगे। आज हमारा मकसद था, हमने पहली बार पब्लिकली डोर्स ओपन किए हैं ताकि ये क्रिएटर समिट हम यहाँ पे कर सकें और बच्चों के रजिस्ट्रेशन ओपन कर सकें। तो अभी ये फॉर्मल लॉन्च नहीं है। फॉर्मल लॉन्च हम लोग एक बहुत ग्रैंड लेवल पे करेंगे और तब हम लोग आप लोगों को इन्वाइट करना चाहेंगे। हालांकि अब क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, तो जो कोर्सेज हैं हम लोग 2 तरीके से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। जो मेरा दिल्ली का लाजपत नगर का सेंटर है और जो मेरा चंडीगढ़ का सेंटर है, वहाँ पे हम लोग सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑफर करेंगे। 2 साल की अवधि के कोर्सेज हैं, 1 साल का ट्रेनिंग है, 6 महीने का इसमें लाइव प्रोजेक्ट है और 6 महीने का पेड अप्रेंटिसशिप।
यही कोर्स जब यूनिवर्सिटी में डिग्री के तरीके से ऑफर किया जाएगा, जो अहमदाबाद में कर्नावती यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग चालू कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप 5 और यूनिवर्सिटीज देखेंगे जिनका हम लोग आप लोगों को 31 मार्च के पहले नाम अनाउंस कर पाएंगे। वहाँ पे डिग्री प्रोग्राम्स 3 साल के होंगे, जिसमें 2 साल की ट्रेनिंग है और 1 साल में उनको 6 महीने का लाइव प्रोजेक्ट और 6 महीने का अप्रेंटिसशिप मिलेगा। अब लाइव प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा लाइव प्रोजेक्ट में भी आता है, तो अगर आज वो फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म मेकिंग का कोर्स करता है, तो उसको यहाँ से जाने के पहले ये एश्योरिटी होगी कि वो एक फिल्म के अंदर कास्ट या टेक्निकली उस फिल्म के अंदर काम कर चुका होगा। तो यहाँ से जाने के पहले उसके पास एक पोर्टफोलियो होगा जो ग्लोबली मार्केट में पब्लिश हुआ होगा। अगर वो इवेंट मैनेजमेंट में कोर्स में आता है, तो वो इंश्योर हो सकता है कि आज वो आईफा जैसे बड़े इवेंट्स में जाएगा और कोर्स खत्म होने के पहले कई ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स में वो जा चुका होगा। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है ये 2 साल और 3 साल में डिवाइड किया गया है। 2 साल में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं और मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल के थ्रू एनसीवीटी के अंडर में ये जो सर्टिफिकेशंस हम लोग देंगे, ये एनसीआरएफ और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लेवल प्रोग्रेशन के थ्रू मान्यता प्राप्त है। तो बच्चा अगर ये सर्टिफिकेट करता है और यहाँ से वो डिग्री में ऑप्ट करना चाहता है, तो उसको वो क्रेडिट सिस्टम यहाँ पे एक्वायर मिलेगा। मैं थोड़ा आपका आंसर देना चाहूँगी इसमें। एक अपार आईडी है जो आजकल हर बच्चे के लिए दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज बाय द यूजीसी, इट इज बिकम मैंडेटरी फॉर द हायर एजुकेशन। ABC, and we call it a academic bank credit. Today, as you deposit your money in the bank, and whenever you feel like you can withdraw your money, it is just like that. All your academic credits will be put into that bank through Apar ID. Every student will have its own Apar ID. Student can access their ABC. The credit, suppose the student has done 1 year that program and got a certification, because in the NEP 2020 you have multiple exit entry. Under new education policy, that Yes. I know. That I Yeah, know. yeah. So under that, if the student take an exit, we'll give the diploma, this certification to the student, and student returns back after 3 years, then want to have a degree. Again, that credit can be done. Or if the student wants to go abroad, even abroad also, UGC is now flexible about it. Those credits can be transferred. So it has become very transparent now. This is how they can give the certification. We are like having that center. Suppose I'm having that center in my university in higher education. We can give the degree to the students. So this is how degree they cannot give, because the universities can only give the degree. No, But so- certification no, they can just, give. just a technical issue is that you are in Uttar Pradesh. Yeah. I think. Yeah. And his shoot is in Delhi. Under the Supreme Court guidelines, you are not entitled to give any degree to beyond your state, madam. One Please minute. correct. Let me correct you. Let me correct you. नहीं, Please. वो जो कह रहे हैं ना, What आप you are समझने की talking, कोशिश you are कीजिएगा। talking absolutely a different thing. नहीं, It that- is that- it that I is know, within that's the fine. jurisdiction, That's fine. within the jurisdiction of the state. नहीं, मैं आपको बताता हूँ जो वो कह रहे हैं, ये अब मैं आपको बताता हूँ क्या नहीं, वो है। IACS का सेंटर किसी भी अक्रॉस द इंडिया कहीं भी स्टैब्लिश कर सकते ठीक है, हैं। वो वो हमारा बच्चा हो जाएगा ना। हाँ, तब होगा। समझ गए आप? तब होगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के हिसाब से अब बच्चे को सर्टिफिकेशन मिलता है। तो जो हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, इसमें बच्चे को जो सर्टिफिकेट मिलता है, तो मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल का मेजर जो रोल है, जो सेक्टर काउंसिल्स का मेजर वर्चस्व जो है, वो है कि हम लोग नेशनल रिपोजिटरीज बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्वालिफिकेशंस। उन क्वालिफिकेशंस के ऊपर ही पूरे विश्व में ट्रेनिंग होती है और ये ट्रांसनेशनल है। तो आज अगर ये बच्चा सर्टिफिकेशन लेके ऑस्ट्रेलिया जाता है, तो टेफ के साथ हमारी है। अगर वो सिंगापुर जाता है, तो सिंगापुर में उसको क्रेडिट वेवर मिलेगा। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि इक्विवेलेंस मिल गया। पहले 2 पिलर थे, वोकेशनल जिसको हम स्किलिंग कहते हैं, और एक फॉर्मल। ये दोनों अलग अलग चल रहे थे। अब यहाँ पे इस बीच में एनसीवीटी ने आकर के अपना एक लेवल प्रोग्रेशन का मैट्रिक्स बना दिया है। तो अगर बच्चा मान लीजिए लेवल 4, मैं बिल्कुल एक लेमन भाषा में आपको बता रहा हूँ, अगर वो लेवल 4 का सर्टिफिकेट लेके जाता है, तो मान के चलिए उसकी इक्विवेलेंस होगी ईयर 1। अगर वो लेवल 5 का सर्टिफिकेट लेके जाता है, तो उसकी इक्विवेलेंस होगी ईयर 2। तो वो बच्चा कोर्सेज के बीच में माइग्रेट कर सकता है। तो आज अगर वो बच्चा लेवल 4, लेवल 5 का सर्टिफिकेशन लेके जाता है और वो जाकर के किसी यूनिवर्सिटी में उस सर्टिफिकेट को मैप करता है, तो वो डायरेक्टली क्रेडिट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर में लेवल 5 के बेसिस पे या लेवल 6 के बेसिस पे ईयर 1 और ईयर 2 के अंदर डायरेक्टली एनरोल हो सकता है। इससे बच्चे इंडिया का की किसी भी यूनिवर्सिटी और इंडिया में कहीं भी, और इससे बच्चे का जो समय था,
जो वो स्किलिंग कोर्सेज में लगाता था और उसको एक फॉर्मल डिग्री नहीं मिल पाती थी कि मान लीजिए मैंने एनिमेशन का कोर्स तो किया है लेकिन मेरे पास डिग्री बीकॉम की, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे अब खत्म हो जाएगी। और यही NEP 2020 का मकसद है कि मल्टी स्किलिंग और किसी भी तरीके से जो बच्चों का टाइम ड्यूरेशन है वो हम लोग खराब ना होने दें। So that is what she's talking सर about. आपने बताया कि आपसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, तो बच्चे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, प्लीज हमें बताएं। तो मैम वेबसाइट के ऊपर जाके बच्चे अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। इसका एंट्रेंस क्राइटेरिया में सबसे पहले तो उनको एक ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद उनका पोर्टफोलियो रिव्यू है, तीसरे लेवल पे उनका इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू के होने के बाद ही हम लोग बच्चों का सिलेक्शन करेंगे। अभी फिलहाल लाजपत नगर सेंटर में हम लोग सिर्फ 210 बच्चे ले सकते हैं। अहमदाबाद सेंटर में हमारे पास में 350 सीट्स हैं और आने वाले समय में चंडीगढ़ के अंदर हमारे पास में 350 से 400 सीट्स होंगी। पर पैन इंडिया इन 10 कैंपसेस जो हम लोग बाय 2026 एस्टेब्लिश करेंगे, टोटल मिलाकर के 3500 सीट्स होंगी जो पूरे इंडिया से हम लोग बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको ट्रेन कर सकेंगे। आपने बोला यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं, लेकिन वो तो यूजीसी से रिकॉग्नाइज होती है, लेकिन आपका तो यूजीसी से कोई मेरा लेना देना। सर एक कैंपस जैसे लाजपत वाला सेंटर है, यहाँ कोई डिग्री नहीं है, ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। चंडीगढ़ सर्टिफिकेशन कोर्स है, लेकिन अहमदाबाद में ये कर्नावती यूनिवर्सिटी के साथ हमने पार्टनर किया है, तो यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो कर्नावती दे रही है। कर्नावती। तो हम लोगों ने कोर्सेज क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिए। तो मान लीजिए आज वो कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में कोर्सेज जाएंगे, नॉमेनक्लेचर सेम होगा, कोर्स का करिकुलम कंटेंट सब कुछ स्टैंडर्डाइज है, बच्चा वही पढ़ेगा जो इंडस्ट्री चाहती है। यूनिवर्सिटी सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग बॉडी बनेगी और डिग्री अवॉर्डिंग बॉडी बनेगी। इसके अलावा जो भी कोर्सेज हैं वो सब IISES के हिसाब से ही होंगे। And I also feel इंडस्ट्री में डिग्री देख के जॉब्स नहीं मिलती, इट्स मोर अ स्किल बेस्ड थिंग, इट्स अ क्रिएटिव थिंग। आप कोई भी आप डिग्री दिखा सकते हो, बट इफ यू डोंट हैव अ स्किल एंड द नॉलेज, people are not going to hire you. So it does, degree is just you know, of course for more educational based programs it's important, but I don't think कि किसी को डिग्री देख के everybody is not from a acting school, you could be a born actor as well, so it's like you know everybody so can सर्टिफिकेशन कोर्स ही इनफ है। Yeah. मेरे हिसाब से मैं अगेंस्ट नहीं जाऊंगा ये जो कह रहे हैं कि इनका जो स्टैंडर्ड एंट्रेंस जो कह रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, उनको थोड़ा मैं इनको सजेस्ट करूंगा एज एन एक्टर कि उसको थोड़ा चेंज किया जाए। कि कई लेमैन होते हैं, जैसे समझो मैं था पहले, तो मैं अगर आई एम श्योर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में मैं फेल ही हो जाता, क्योंकि मुझे मैं एक लेमैन ये क्रिएटिव आदमी है, जरूरी नहीं कि आई एम नॉट सेइंग पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट सेक्टर, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। तो क्रिएटिव आदमी टैलेंटेड रहता है और उसको अंदर घुसना है इंडस्ट्री में, तो वो एंट्रेंस एग्जाम में शायद वो क्लियर ना कर पाए, क्योंकि इन्होंने लाइव उस पर्सनालिटी को देखा नहीं है। तो वो बंदा जो सामने आएगा वो अलग तरीके से आएगा, उसका दिमाग कुछ और होगा। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, ऑनलाइन एग्जाम में कोई फेल नहीं होगा। तो इसलिए फेल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रेडिंग सिस्टम पे हम उसका ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले रहे हैं, हम उसकी क्रिएटिविटी को चेक कर रहे हैं, हम उसके एप्टीट्यूड को चेक कर रहे हैं। मान लीजिए हम उसके साथ में जो सवाल है वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसमें मान लीजिए एक सवाल है कि जिसके अंदर हम लोगों को उसको टीम वर्क की कैपेबिलिटी को चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर एक अकेला इंडिविजुअल काम नहीं करता, उसके साथ में 50,000 लोग और काम कर रहे होते हैं। तो ये जो टेस्ट है ये उन लोगों की क्रिएटिविटी, उनकी एप्टीट्यूड और उनकी एबिलिटीज को चेक करने के लिए है। ये पहला क्राइटेरिया, ताकि हमें पता लग जाएगा कि बच्चा कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। लेकिन मेन जो है वो पोर्टफोलियो एनालिसिस है, उनका लाइव ऑडिशन है और इंटरव्यू। they'll be polished. Yes. They'll be polished with the best people. मुझे Like, याद they are work ready. मुझे याद आया कुछ, मतलब मैं जब Please. अपनी समर इंटर्नशिप के लिए हार्वर्ड स्कूल गया था, तो वहाँ पे 1 महीने के लिए हमें किसी भी क्लासरूम में कोई भी क्लास लेना अलाउड था, ताकि हम जा पाएँ, उस क्लास को देख पाएँ और हम अपना इंटरेस्ट देख पाएँ कि हमें उसमें जाना है कि उसमें नहीं जाना। Correct. So I think So that's the same format actually we are following here. Yeah. शुरुआत के 6 महीने में से 3 महीने जो है वो फाउंडेशन है। Lovely. बच्चे के पास में कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो आज एक्टिंग की क्लास अटेंड करना चाहता है, मेकअप की करना चाहता है, डांस की करना चाहता है, VFX की करना चाहता है, और उसके बाद उसके स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स पे वो आगे बढ़े। So that's the same way we are structured. Thank you for my वेरी हैप्पी, क्योंकि ये कहीं है नहीं सर इंडिया में मेरे हिसाब से। सो इट्स लवली टू नो। काश ये प्रोग्राम हमारे टाइम पे होता, तो आप बिलीव सर इस बात पे भी, अरे इस बात आप बिलीव करोगे, मैं भी सहमत हूँगा अगर मेरे टाइम पे भी। हमारे करियर की शुरुआत में जब हमने
कॉलेज पास आउट नहीं कहूँगा, कॉलेज फेल करके जब हम सोचते थे कि हमें डांसर बनना है, तो मैंने डांसिंग शुरू कर दी। तो पैसे कहीं से मिलते नहीं थे, तो चलो किसी ने बोला मॉडलिंग कर लो, आपकी शक्ल अच्छी है, चलो आप मॉडलिंग बन गए। मॉडलिंग में पैसे नहीं मिले तो चलो आप एक्टर बन जाओ। तो आई एम सेइंग अगर उस टाइम पे ये प्लेटफॉर्म या ऐसे लोग मिलते जो सजेस्ट करते या हमारी क्रिएटिविटी को नर्चर करते, तो हमें कम टाइम लगता था एक स्ट्रगल को ख़त्म करने के लिए। तो मेरा मानना है ये जो कंसेप्ट आज आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने पिछले 2.5-3 साल काम किया और सबसे बड़ी भूमिका रही इसमें हमारे मंत्री सर की, सेक्रेटरी सर की और उसके साथ हमारे पास गवर्निंग बोर्ड की और एग्जिस्टिंग गवर्निंग बोर्ड की। ये कंसेप्ट हम लोगों ने सुभाष जी के टाइम पे डिस्कस करना शुरू किया, रमेश जी के साथ में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, अब शंकर महादेवन जी चेयरमैन हैं, उनके साथ में हम लोगों ने इसके ऊपर बात की और पूरा गवर्निंग फोर्स जो है, केतकी मैम है, आशीष जी थे, अमित बहल हैं, सब जितने भी गवर्निंग इंडस्ट्री मेंबर्स हैं, उन लोगों ने इस पूरे कंसेप्ट को पैकेज करने में बहुत हेल्प किया और इसके बाद हम लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट को बहुत स्कैन किया, तब जाकर के मुझे लगता है इस प्रोडक्ट को हम लोग डेवलप कर पाए और उम्मीद यही है कि बच्चा यहाँ से जाने के बाद जॉब तो नहीं ढूंढेगा। So I think that's सेलिब्रिटी का भी आपको सपोर्ट है, शंकर महादेवन आप मेरा चेयरमैन है, तो सेलिब्रिटी का भी तो सपोर्ट है। सर देखिए मेरे हिसाब से ना ये इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है और जहाँ आप देख रहे हैं सभी इंडस्ट्री के दिग्गज यहाँ बैठे हुए हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। अब इंडस्ट्री ने आना है, उसी ने पढ़ाना है, उसी ने ट्रेन करना है, बेस्ट क्रॉप को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है और उसको एक प्लेटफॉर्म देना है कि वो बच्चा कभी स्ट्रगल ना करे, उसको एक राह हम लोग आसान कर सकें और मतलब उसमें सबका फायदा है क्योंकि ये रीजनल मार्केट को कैप्चर करेगा। तो आज जो स्टोरीज हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो बिहार से है, चाहे वो यूपी से है, चाहे वो एमपी से है, असलियत मानिएगा वो स्टोरीज ग्राउंड से शायद बहुत कम है। जो यूपी में है, जो एमपी में है, वो शायद हम लोग रियल में देख नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ के क्रिएटर्स उसको निकाल के लाएंगे कि आज एमपी के अंदर अगर सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं तो वहाँ पे शेर को देखने का मजा क्या है, और राजस्थान में अगर फोक आर्टिस्ट हैं तो उनको रियल में ऊपर लेकर के आके कैसे उनके साथ फिल्म बना सकते हैं। तो आई थिंक एक आप देखेंगे एक बहुत डिफरेंट एरा 2 साल के बाद आप देखेंगे जो बाहर आएगा और स्टोरी लाइन के अंदर हम लोग बहुत चेंजेस कर पाएंगे। I think the quality of content will also change. Yes, जैसे absolutely. आपने जैसे बात की ना कि ग्लोबली रेडी होने की जरूरत है, तो वो बेसिकली फाउंडेशन यहाँ Correct. ताकि हम मैचअप कर पाए कि जो ग्लोबली It स्टैंडर्ड्स will हैं। also increase the employment or things within the platform also. So people who are sitting there and giving these calls for a content to come on the platform, will be also a next crop will be well educated enough from the scratch that okay fine, we don't have such education in India. This is the first one of a kind which. और ग्लोबल से मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, जैसे डॉक्टर रसूल कुट्टी जी कल आ भी रहे हैं हमारी क्लास एक लेने के लिए, तो if I as a student come and I am into music and sound design, I will be able to meet the master कि उन्होंने ऑस्कर कैसे जीता। अगर मुझे as a student ऐसे इंसान से सीखने को मिल रहा है कि ऑस्कर कैसे जीता जाता है, I don't think it's anything better than One thing I would like to tell you here, इसको हम डिग्री या सर्टिफिकेशन से बिल्कुल ना जोड़ें, ये स्किलिंग है और यहाँ बच्चों को जैसे उन्होंने एक सवाल उठाया था स्कैम, सबसे बचने के लिए स्किल्ड बच्चा इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं। Right connect we are giving through this platform, which is important. So we should not compare it with the crude education system. This is all related to creativity and skill enhancement. Thank you very much. Thank you so Thank you so much. Thank you so much. ये आपने देख लिया तो आप मुझे बताइए कमेंट में कि इस नैरेटिव का क्या मतलब, कैसे आप इसको अपने उसमें देखते हैं, कैसे आपको लगता है कि ये सही है या फिर इसमें और भी कुछ होना चाहिए था, कुछ ज़्यादा इनको देना चाहिए था या कम दे रहे हैं कुछ, या फिर और कुछ इनिशिएटिव ले सकते थे इसको हटा के। मेरे को कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, क्या लगा और क्या आपका ओपिनियन है इसमें।